A very good morning to all of you dear students. बेटा ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੇ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ax plus b is equal to 0 where a should not be equal to 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x is equal to 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ y is equal to 3 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ y 2y plus 5 is equal to 0। these all are examples of linear equation in one variable। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ax plus by plus c is equal to 0 where a b and c are real numbers and a and b are not both zeros। a और b ਜਿਹੜਾ x ਤੇ y ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੋਵੇਂ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ, ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x plus y is equal to 5 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2x minus y minus 3 is equal to 0 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x plus y minus 7 is equal to 0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ a linear equation in two variables has infinitely many solutions। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ let us solve a linear equation in two variables। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਮਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਵਿਕਟ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ x ਹੈ, ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ y ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ x plus y is equal to 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ x 0 ਹੈ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਾਵ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7 ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।
उस तो बाद बेटा x जे आप 3 वैल्यू भरीए रैंडमली कोई भी वैल्यू आप भर लेंदे आ x बराबर 3 तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 4 तो देयरफॉर x बराबर है 3 y बराबर है 4 भी इस समीकरण का हल है। उस तरह की तुसी कुछ होर हल लभ सकते हो बेटा तुसी अपने आप हल लभ सकते हो ये हाँ जी बहुत सारे हल तुसी लभ लए होने हैं। चलो मैं इत्थे एक एग्जाम्पल के तौर पर हल इत्थे ले लिया होया x बराबर है 5 y बराबर है 2। तो बेटे हुण असी देखते हाँ कि तुसी ये सारे हलों नूं बेटा इस तरह भी लिख सकते हो तुसी ऐ भी लिख सकते हो 0,7 इसका एक हल है। उस तरह 3,4 इसका एक हल है। हमेशा याद रखना x का जो वैल्यू पहला लिखनी है उवें बेटा 5,2 इसका एक हल है। तो मैं तुहानूं पिछली बार दस्सिया सी कि असीं इहनूं टैबुलर फॉर्म दे विच भी किवें लिखना है x अते y असीं लिख लैंदे हां। जदों x 0 है y कितना है 7, जदों x 3 है y कितना है 4, जदों x 5 है तो y कितना है 2। इज इट क्लीयर? इस तरह बेटा आपां नूं लिखना आंदा है। ते आओ आपां हुण देखिए कि इहनूं असीं ग्राफ ते बेटा किवें बनाना है। ग्राफ वास्ते मैं तुहाडे सामने तुहानूं पता है ग्राफ पेपर दे बेटे उपर अपने कोल एक एक्स एक्सिस तुसीं देख रहे हो जिहड़ी कि ये तुहाडे कोल हॉरिजोंटल लेटवी रेखा है। खंडवी रेखा नूं बेटे असीं की बोलदे हां वाई एक्सिस। ते ये तुहानूं अच्छी तरह याद है इधर असीं एक्स इधर प्लस दियां वैल्यूज इहनूं असीं ओरिजिन बोलदे हां बेटा 0 ओ नाल असीं इहनूं रिप्रेजेंट करदे हां जिथे एक्स ते वाई दोवें 0 हुंदे। ते उस तो बाद साडे कोल इधर एक्स है इधर बेटे असीं इहनूं माइनस एक्स भी बोल दिंदे हां एक्स डैश भी लिख दिंदे हां। उपर बेटा वाई ते नीचे की हुंदा है वाई डैश या माइनस वाई। ते उस तो बाद ग्राफ पेपर ते बेटा तुहानूं पता ही है कि असीं बिल्कुल इक्वल इंटरवल से असीं इहदी लेबलिंग इधर प्लस एक्स प्लस दियां वैल्यूज एक्स दियां उपर प्लस दियां वैल्यू वाइज दियां। उस तरह इधर बेटा वाई एक्स दियां माइनस वैल्यूज नीचे वाई दियां माइनस वैल्यूज असीं इस तरह ना रिप्रेजेंट बेटा करते हाँ। ते हुण बेटे असीं देखते हाँ कि असीं इहनूं ग्राफ दे पेपर ते किवें आ वालियां बेटा वैल्यूज जिहड़ियां आपां कड्ढियां होईयां किस इक्वेशन दियां x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 जिहड़ा अपने कोल इक्वेशन सी ओहदा बेटे आपां टेबल बनाया सी लास्ट पेज ते मैं इत्थे टेबल ले आंदा है। हुण देखो बेटा असीं ओही बिल्कुल तुहाडे सामने ग्राफ तुसीं देख रहे हो थोड़ा जिहा इहनूं क्लोजर लुक दे विच तुहानूं मैं दिखाया है। ते x पहली वैल्यू आपां लैने आ जदों x 0 है ते y कितना है बेटे तुहाडे कोल 7। ये पॉइंट कित्थे बनेगा देखो जदों x 0 है x बेटा 0 ते y की है 7 y कितना है बेटे तुहाडे कोल 7 देख रहे हो तुसी पॉइंट 0 7। उस तो बाद बेटा अगला पॉइंट है x जो 3 है y कितना है बेटा 4 x 3 ते उधर y असी लेना है बेटे 4 आ तुहाडे कोल अगला पॉइंट आ गया देख रहे हो तुसी। उस तो बाद बेटा x जो 5 है y कितना है 2 ते तुहाडे कोल पॉइंट बेटे आ गया। ते हुण तुसी देखना है ये तिन्ना पॉइंट्स नूं वैसे तो बेटा आपां 2 पॉइंट्स लेके भी अपने कोल लाइन ड्रॉ हो जाती है क्योंकि आपां ये पढ़िया होया है कि किसी भी जिहड़े 2 वक-वक बिंदुआं दे विचों केवल एक ही रेखा खिंची जा सकती है। पर आपां 3 बिंदु इस करके लैंदे हां कि किसी कैलकुलेशन च मान लो अपने कोल कोई बिंदु दी कैलकुलेशन दे विच असीं एक्स वाई दे कोआर्डीनेट गलत हो गए तो तुहाडी जिहड़ी ओहदा ग्राफ भी गलत हो जाएगा। लेकिन जदों आपां 3 लैंदे हां तो उसदी एक तरह की पड़ताल हो जाती है कि अपने जिहड़े बिंदु है वो ठीक ले गए। जेकर 3 बिंदु एक रेखा च नहीं आ रहे तो तुहानूं पता लग जाएगा कि मेरी कैलकुलेशन किते रॉन्ग है तो तुसीं ओनू रीचैक कर सकते हो अपने क्वेश्चन। तो देखो बेटा ये तीनों पॉइंट्स तुहाडे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन च ने ते असीं इहनूं इस तरह नाल तुसीं देख रहे हो रेड जिहड़ी एक लाइन है असीं इहनूं इहदे नाल दर्शा देना है लाइन ड्रॉ कर देनी है जिहड़ी तिन्ना बिंदुआं दे विच दी निकलदी है। और एक चीज़ बेटा तुसीं इहदे एरोज जरूर लगाने इस लाइन दे ठीक है। ते एक होर बड़ी अच्छी इहदी हैबिट है कि जिस इक्वेशन दा तुसी ग्राफ ड्रॉ किया उसनूं इसदे एक बिल्कुल थोड़ा नीचे वाली साइड ते जाके उसनूं लिख भी दो। ये भी एक बेटा बहुत ही जरूरी प्रैक्टिस है। ते हुण तुसी देखो कि आपां अच्छी तरह तुसी इस ग्राफ नूं देख सकते हो। हमेशा तुसी इस तरह ही तुसी इहनूं लेबल करना है एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस नूं। उस तो बाद एक चीज़ तुहानूं मैं होर दसना चाहांगी बेटे कि जिहड़ियां तुहाडीआं इत्थे टेबल दे विच वैल्यूज है उन्हां नूं जरूर अच्छी तरह देखो। जिवें कि जिहड़ी तुहाडे कोल वड्डी तो जिवें हुण एक्स वाई दी सब तो वड्डी वैल्यू कितनी है 7 उवें एक्स दी भी बेटा चैक करो उन्ने पॉइंट्स तुहाडे कोल इत्थे जिहड़े है जरूर तुहाडे ग्राफ दे उपर
मार्क होने चाहिए ने। ते आपां एक क्वेश्चन होर लेंदे हाँ बेटा, x माइनस वाई बराबर 2 बराबर है 1 दे हल पता करो। x माइनस 2y बराबर है 1 दे हल पता आपां करदे हाँ। हुण देखो बेटे x माइनस 2y बराबर 1, सब तो पहला मैं बेटा ये x की वैल्यू 1 भर दी, चाहे ये तुहाडी मर्जी है, तुसी चाहे x की वैल्यू भर दो चाहे y की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पैंदा। x की वैल्यू जे असीं 1 भरदे हाँ बेटा तां तुसी देखो समीकरण 1 माइनस 2y बराबर है 1 माइनस 2y बराबर है 1 माइनस 1 0, यानी y की वैल्यू बेटे तुहाडे कोल 0 आ गई। तो ये तुहाडे कोल पहली जिहड़ी वैल्यू है 1 ते 0 सोल्यूशन इस समीकरण का आ गया बेटे। उस तो बाद फिर असीं समीकरण लिख के x का मुल कितना भर दिता 2, तो असीं जदों इहदे विच 2 वैल्यू भर दी बेटा तुसीं देख सकते हो 2 उधर जाके -2 हो जाता है, ये -1, तो y की वैल्यू बेटा तुहाडे कोल की आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी 1/2। तो नैक्सट तुहाडे कोल सोल्यूशन है 2,1/2। उसी तरह थर्ड पॉइंट है बेटा x माइनस 2y बराबर है 1, ये बेटा x की वैल्यू 3 भर दो तुसी, तो तुसी देख पा रहे हो सोल्यूशन ये वैल्यू बेटा 1। अपने कोल 3 पॉइंट असी फिर असी ये हल पता कर ले। हुण बेटा असी इहनू देखते हाँ कि ज्योमैट्रिकली असी इहनू किवें इहदा ग्राफ बनाना है। ध्यान नाल देखो, ये बेटा इहनू मैं टेबुलर फॉर्म दे विच लिख लिया, तुसी देख पा रहे हो 1 ते 0, 2 ते 1/2, 3 ते 1। ते हुण आपां इसनू जिमाइती इहदा निरूपण देखो बेटे किवें करांगे असी। ये वैल्यूज बेटे टेबुलर जिहड़ा फॉर्म सी मैं इत्थे लिख लिया, तुहाडे सामने ग्राफ तुहानू पता है, तुहानू सब नू आंदा है लेबल करना। ते असी बेटा पहला पॉइंट इहदा की लवांगे x 1 ते y कितना है बेटा 0, x 1 है ते y कितना है 0, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों। जे तुसी ध्यान नाल देखो x 1 ते y 0, उस तो बाद बेटे x 2 ते y कितना है 1/2। ये मैं थोड़ा तुहाडे लई वैसे स्पैशल 1/2 वाली वैल्यू ली कि बच्चे थोड़ा इस गल नूं घबरांदे कि कित्थे इहनूं लगाना बिंदु। x 2 बेटा आपे चले गए, y कितना है 1/2। हुण 1/2 सानूं पता है y 1 इत्थे है, ते तुहाडे कोल ग्राफ दे विच तां होर विच 10 लाइनां हुंदियां एक डब्बे दे विच, तां तुसीं ओहदे बिल्कुल विचकार जिहड़ी 5वीं लाइन है वो पॉइंट है जिहड़ा तुसीं लै लेना है। ते तीसरा पॉइंट है 3 ते 1, ये पॉइंट तो आसान ही है, 3 ते 1 आपां नूं लैना आंदा ही है। तो तुसीं देखदे पए हो बेटा कि जिहड़े तीनों पॉइंट है वो एक रेखा दे विच दी लंघदे हन, तां असीं इहनूं स्केल दे नाल बेटा लाइन है जिहड़ी इस तरह नाल असीं इहनूं ड्रॉ करांगे। ठीक है बेटा, ते तुसीं इहदे ते जिहड़ी इक्वेशन है अपने कोल इक्वेशन की सी इहदी x माइनस 2y बराबर है 1, इस ग्राफ दे उपर आपां जरूर लिखांगे साइड ते x माइनस 2y बराबर 1 दा ये जिहड़ा है ग्राफ असीं ड्रॉ कीता। वैसे तो कोशिश करो कि जो तुसी सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो जिहड़ा वटे वाला अवॉइड कर सकते हैं असी, क्योंकि वटे वालियां दे विच की हुंदा बेटा 1/2 या इस तरह दी वैल्यूज तो आप लगा लेंगे, पर कई बार बिल्कुल ही 2/7 या इस तरह दी जो वैल्यू तो थोड़ा उन्होंने मार्क करना औखा हुंदा है, लोकेट करना पॉइंट। इसलिए कोशिश करो कि असी वो वैल्यूज असी बदल भी सकते हैं ना, वो पर्टिकुलर वैल्यू छड्ड के तुसी अगली वैल्यू लैके पुट करके देख सकते हो। हुण बेटे असी एक होर बड़ा असी इंटरस्टिंग क्वेश्चन करते हाँ। आओ असी x बराबर है 0 का ग्राफ खिंचीए। हुण तुसी कहोगे भी ये इक्वेशन की हुई कि x बराबर है 0 इक्वेशन है, तो बच्चों ध्यान नाल देखो अपने कोल इक्वेशन x बराबर है 0 का ग्राफ जो असी खिंचना तो असी पहला इसनू जे तो बेटे इनू सिंपल असी x बराबर है 0, ये किहड़ी इक्वेशन है जिन्हों असी इस तरह ही पढ़ते हाँ, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल। तो जे दा सिंपल आप सोचिए तो यदि बेटा नंबर लाइन ते ग्राफ बड़ा ईजीली की बन जाता है, इत्थे 0 1 2 इस तरह ही है ना बेटे अपने को नंबर लाइन। तो आ x बराबर है 0 पे है, तो यदा रिप्रेजेंटेशन होगी x बराबर है 0। पर जदों मैं इसनू x बराबर है 0 नू बेटे मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स कन्वर्ट कर दी। किवें करांगी, इहदे विच मेरे पास y नहीं है तो y नू आपां की लिख लांगे 0y, ये आपां पिछली बार सीखिया भी सी। ते मेरे को कांस्टेंट टर्म अपने को जर्नल फॉर्म सी ना बेटा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जर्नल फॉर्म सी, ते इहनूं आपां जर्नल फॉर्म दे विच ये अपने को बन गया। ठीक है, ते हुण तुहाडे कोल काहदे च कन्वर्ट होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स, यानी x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। हुण बेटे देखो
किवें असीं इहदी सोल्यूशन किवें फाइंड आउट करने हैं। बड़ा इंटरस्टिंग है और बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट असीं इहदे नाल ਲੱਭ सकांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटे y ਦੀ वैल्यू पुट करी चलो ते x ਦੀਆਂ वैल्यूज देखो की आ रही हैं। हाँ जी बेटा y पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा y 0 पुट किया 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू बेटे कितनी आ जानी है 0 बिकॉज x प्लस 0 इज x। ठीक है यानी जदों असी y इत्थे बेटा जदों असी y 0 पुट किया x कितना आया 0। हुण बेटा मैं फिर y की वैल्यू 1 पुट कर देनी है पुट y इज इक्वल टू 1। देखो बेटा की आएगा x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 अगेन दिस इज 0 x इज इक्वल टू 0। जदों आपां y 1 पुट किया x फिर 0 तो तुसी देख रहे हो कि आपां y की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे x ने कितना आना है 0। तो हुण आपां बेटे जे इहदा ग्राफ ड्रॉ करिए तो देखो आपां इहदा ग्राफ ड्रॉ करते हैं पॉइंट आपां देखते हैं 0 0 0 1 ते 0 2 0 1 0 0 0 1 ते 0 2 आ पॉइंट सी बेटा अपने कोल इत्थे ग्राफ ड्रॉ करो 0 0 बेटा पॉइंट आपां नूं पता है ओरिजिन 0 1 x 0 y 1 x 0 y 2। हुण तुसीं देखो जे तुसीं लाइन मिलाने हो बेटे तो एक कित्थे मिल रही है जिहड़ी आपां तिन्ना पॉइंट्स नूं मिलाने वाली जिहड़ी लाइन है वो की बन रहा है तुसीं देखोगे y एक्सिस ही बन रहा है। तो आपां की देखते हाँ कि जदों तुहाडे कोल जिहड़ी ये समीकरण है x बराबर 0 दा ग्राफ की है y एक्सिस। तो ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटे और जो तुसीं NTSC या इस तरह कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स देने उहदे चाहे जे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि x बराबर 0 दा ग्राफ की होएगा y एक्सिस। ठीक है उस तरह जे हुण मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पूछा कि y बराबर है 0 दा ग्राफ की होएगा y बराबर है 0 दा ग्राफ की होएगा बेटे x एक्सिस। तो ये दो चीज़ां तुहानूं हुण याद हो गई एंड क्योंकि मैं तुहाडे लई छोटे छोटे क्वेश्चनस भी लैके आई आप वो भी करांगे। हुण बेटे अपने कोल एक होर क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन आपां नूं आ जांदा है कि बिंदु 2,14 विचों हो के जाण वालियां दो रेखावां दे समीकरण लिखो। इस तरह दियां होर किन्नियां रेखावां हो सकदियां हन अते क्यों। देखो बेटे क्वेश्चन हालांकि आपां नूं देखण च लगदा भी बड़ा ये एक क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है या किवें आपां करांगे। इस तो पहला क्वेश्चन करन तो पहला मैं तुहानूं एक छोटी जी गल होर इत्थे दसना चाहती सी कि जदों भी आपां देखो आपां कोई भी ग्राफ आपां ड्रॉ करदे जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां ये ग्राफ ड्रॉ कीता सी बेटा आपां किस समीकरण दा कीता सी x - 2y बराबर है 1। तां बेटा की है कि इस लाइन दे उपर तुसीं मैनूं दस सकदे हो किन्ने पॉइंट्स है इस किसी भी रेखा दे उपर किन्ने बिंदु हुंदे हन आपां नूं पता है अनगिनत बिंदु हुंदे हन। तो बेटा इस रेखा दे उपर जिन्ने भी बिंदु हन वो ए वाली इक्वेशन केड़ी इक्वेशन x - 2y बराबर 1 दे की हन सोल्यूशन हन। ठीक है बेटे इस दे की हन सोल्यूशन हन। ते उस तरह आपां दोनों गल्लां कह सकते हैं कि x - 2y बराबर 1 दे जिन्ने भी सोल्यूशन है वो इस रेखा ते स्थित हन। ते दूजी पासे आपां की कह सकते हैं कि इस रेखा ते जिन्ने भी बिंदु स्थित हन वो समीकरण x - 2y बराबर 1 दे हल हन। इसे गल नूं लैके बेटे मैं तुहाडे कोल ये क्वेश्चन कराना चाहती सी कि बिंदु 2,14 विचों होके जाण वालियां दो रेखावां दे समीकरण लिखो कि एक बिंदु दे विचों दो जिहड़ियां रेखावां उस बिंदु चों पास करनगियां मतलब कोई रेखा बेटा जदों भी आपां ग्राफ ते कोई भी रेखा आपां ड्रॉ करते हैं तो इट मीनस वो किसी ना किसी समीकरण दा की है समीकरण दा और जियोमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन है जिवें आपां हुण सिੱਖਿਆ। तां आपां इत्थे कोई एक पॉइंट है 2,14 वैसे आपां नूं दिखदा है 2,14 कित्थे जे होना चाहिए पहली यूनिट अपने कोल क्वाड्रेंट च ही होएगा ना x 2 ते y 14 वैसे मैं तुहानूं एक इमेजिनेशन करन लई कह रही हां। ते इहदे विच्चों हुण एक क्वेश्चन मैं तुहानूं होर पुछना है कि तुसीं ज्योमैट्री दे विच 6वीं क्लास चों पढ़दे आ रहे हो कि एक दित्ते होए बिंदु विच्चों किन्नियां रेखावां खिच्चियां जा सकदियां हन। की पढ़िया सी आपां अनगिनत एक बिंदु है तुहाडे कोल उहदे विचों तुसीं जिन्नियां मर्जी रेखावां खिच सकदे हो अनगिनत रेखावां। उवें मान लो आ जे 2,14 है इहदे विचों आपां जिन्नियां मर्जी रेखावां खिच सकदे हां। तां असीं इक्वेशन लिखनी है बेटा पर हुण आपां अनगिनत इक्वेशनस नहीं लिख सकते आपां एक या दो इक्वेशनस लिखनी है।
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 2,14 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, यानी x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 14। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 14 ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਓ, x + y ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ x 2 ਤੇ y 14 ਭਰਾਂਗੇ ਸੀ 16, ਤਾਂ x + y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 16। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 2,14 ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। दूसरा तुसी की करो, दोनों ਨੂੰ माइनस करके देख लो, x - y बेटा 2 - 14 बेटा कितना हुंदा है -12। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशंस बन गई जिहदे विच जदों तुसी बेटा आ वैल्यू भरोगे तो तुहाडे कोल ये इक्वेशन नूं की करेगा सैटिस्फाई करेगा। वैसे आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं, होर 10 लिख लो 15 लिख लो, उहदे च तुसी जो जेड़ा भी तुसी इधर बनाओगे, जिवें मान लो 2x - y मैं लिख लिया, ਤਾਂ एक्चुअली ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 2x - y ਦੀ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ 2 × 2 - 14 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 4 - 14 - 10, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ -10 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। इस करके ये बिंदु 2,14 विचों होके जान वालियां अनगिनत जड़ियां हन समीकरण या रेखावां हो सकदियां हन। हुण बेटा होर तुहानूं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जेकर बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर है ax = 7 दे आलेख ते स्थित है तां a दा मुल पता करो। ये दा मतलब की है बेटा कि आ इक्वेशन सी 3y बराबर है ax + 7। ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਤੇ 4 ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो आप लिखांगे पूरा इनू लिखन का तरीका है क्योंकि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर है ax = 7 दे आलेख ते स्थित है, दे आलेख ते स्थित है। देयरफॉर आप की लिखांगे 3,4 समीकरण 3y बराबर है ax = 7 दा एक हल है, एक हल है। ते जे हुण इहदा हल है बेटा तो आपां नूं पता है कि इहदे विच बेटा पुट x = 3 and y = 4, तो LHS will be equal to RHS। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा पुट कर दो 3 × 4 बेटा y की वैल्यू 3 × 4 बराबर है a × x बेटा कितना है 3 + 7, 4 तियां बेटा 12 बराबर है 3a + 7, 12 - 7 बराबर है 3a। तो बेटे तुहाडे कोल 5 बराबर है 3a, तो a बेटा तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 5/3। सो दिस इज द आंसर। क्लीयर हो गया बेटा। इस तरह का जो भी तुहानूं कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जे कोई बिंदु इहदे आलेख ते स्थित है तो इहदा मतलब ओहदा की बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। हुण बेटे आपां एक आपां प्रैक्टिकल लैने आ अपने रोजाना लाइफ दे विच इक्वेशनस देखो बेटा किवें काम आंदियां हन। एक नगर विच एक टैक्सी का किराया हेठां लिखिया है, हेठ लिखे तरीके नाल लगदा है। पहले किलोमीटर का जिहड़ा किराया बेटे वो कितना लगदा है 8 रुपए, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਇਆ y ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਆਲੇਖ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ बेटे, टोटल दूरी या टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है x किलोमीटर। देख रहे हो तुसी
हुण ये x किलोमीटर दे विच पहले किलोमीटर का किराया दसो कितना होएगा। इस x किलोमीटर दे विच जिहड़े पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना होएगा बेटा, तुहाडे कोल क्वेश्चन दे विच ध्यान नाल देखो 8 रुपए है, ते बाकी कितनी रह गई दूरी। फिर बाकी दूरी बेटा साडे कोल टोटल x किलोमीटर सी दूरी, बाकी रह गई x - 1 किलोमीटर दूरी, ठीक है ना। ते हुण बाकी किराया कितना रह गया, जिहड़ी बाकी दूरी है बेटे उहनूं काहदे नाल गुना करांगे असीं 5 नाल, यानी 5x - 5 इन्ना किराया जिहड़ा हैगा उहदा होर लगना है। ते हुण उहने आपां नूं इह भी कहा कि कुल किराया उहने कितना दित्ता है 22 रुपए। ₹22, ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ 8 + 5x - 5 = y। समझ आ गया ना कि आ दो किराए ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ y। ਇਹ ਤੁਸੀਂ बेटा ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ 8 - 5 बेटा कितना हो गया 3 + 5x = y। इनू आप स्टैंडर्ड फॉर्म च लिखांगे बेटा, तो 5x - y + 3 = 0। ये तुहाडे कोल बेटे की बन गई इक्वेशन। ते जे आप इहदा ग्राफ खिंचना है तो तुहानूं पता है इहदे तुसीं बेटा 3 पॉइंट फाइंड आउट करोगे पहला, और उस तो बाद तुसीं इहदा जिहड़ा है आलेख आपां इहदा ड्रॉ कर सकते हाँ। ते इहनूं तुसीं सिंपल पहला इस तरह लिख लो -3, उस तो बाद बेटा तुसीं इहदे 3 पॉइंट फाइंड आउट कर लवोगे, ठीक है। 3 पॉइंट इहदे विच असीं x ਦੀਆਂ वैल्यूज पुट कर देंगे, तो जिवें आपां पहला पुट x = 0 पुट के कर दिता, तो अपने कोल की बन जाएगा 5 × 0 - y = -3, यानी y = 3। x जे 0 है तो y कितना है 3, ठीक है। उस तरह बेटे आपां इहदे लई बाकी जिहड़ियां वैल्यूज इस तरह आपां इहदे पुट करांगे वैल्यूज, ठीक है। फिर आपां 1 पुट कर दांगे इहदी वैल्यू, जदों x 1 पुट करांगे देखो इत्थे 5x - y = -3। x की वैल्यू बेटा 1 पुट की तो अपने को 5 - y = -3 - y = -3 - 5 कितना आ जाएगा बेटा y = 8, ठीक है। तो अपने को यदि वैल्यू इत्थे 8 आ जाए। इस तरह बेटा तुसी एक वैल्यू होर फाइंड आउट करनी है अते उस तो बाद तुसी इहदा ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करके बेटा की पता लग जाएगा तुहानू जिहड़ा डिस्टेंस है तुसी सीधा ही उस ग्राफ तो अगे फाइंड आउट कर सकते हो भी इन्नी दूरी है तो इन्ना रुपए लगणगे, इन्नी दूरी है तो उहदे इन्ने रुपए लगणगे। हुण बेटे एक क्वेश्चन होर, गिव अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। इस तरह के क्वेश्चन बेटा पेपर च आम पूछे जाते हैं कि अपने को समीकरण y = 3 दिती हुई है, तुसी इहदा पहला एक वेरिएबल च फिर 2 वेरिएबल दे विच। ਆਪਾਂ वैसे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ y = 3 ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਾਦੇ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ y = 3 ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। y = 3 तो दिस इज द सोल्यूशन। पर जदों हुण तुसी मैनू पहले दसो आपां इहनूं 2 वेरिएबल च कन्वर्ट करांगे तो की हो जाएगा 0x, क्योंकि x तो है नहीं, 0x + y = 3 ये बन जाएगी इक्वेशन। तो हुण ये किस इक्वेशन बेटे कादे च कन्वर्ट हो गई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ते हुण जदों असीं इहदा सोल्यूशन कड्डांगे बेटा रिप्रेजेंट करांगे तो कादे ते होएगा, हुण ये कार्टेशियन प्लेन ते। तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटे ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 वैल्यूज फाइंड आउट करिए ਦੀਆਂ जल्दी नाल। हाँ जी बेटा ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀਆਂ वैल्यूज ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। पुट x = 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ बेटा 0 + y = 3 इट मीनस y = 3। ਜਦੋਂ x 0 है ਉਦੋਂ y कितना है 3। फिर ਆਪਾਂ बेटे x 1 भर के देख लो ਤਾਂ भी ये हमेशा 0 ही आना है, तो y की वैल्यू बेटे फिर भी 3 आएगी। जो 2 भरांगे उदों भी y की वैल्यू की आनी है 3 आनी है बेटे।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ है ग्राफ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ बेटे किवें होएगा ड्रॉ ਇਹਦਾ ग्राफ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ पॉइंट ਨੂੰ 0 1 2 3 इधर 1 2 3 उमें बेटे नीचे अपने को -1 -2 ते -3 इधर भी बेटे इस तरह ही अपने को माइनस आप पॉइंट्स 0 ते 3 x जो 0 है बेटा ते y कितना है 3 ठीक है। उसी तरह जो x 1 है जो x 1 है उदों भी y कितना है बेटा 3 जो x 2 है उदों भी y कितना है बेटा 3 तो तुसी देखो ये जिहड़ी तुहाडे कोल ध्यान नाल देखो ये जिहड़ा ग्राफ है तुहाडे कोल किहड़ी समीकरण दा बनिया है y = 3 तो y = 3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ बेटा ग्राफ बनया वो किहदे पैरेलल बनया है x एक्सिस दे। ਇਹ ਗੱਲ बेटा बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट दसन जा रही हूं कि जदों अपने कोल हुण ध्यान नाल सुनना है जदों भी अपने कोल कोई इक्वेशन है y = 3 सपोज आप ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कन्वर्ट किया ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਸੀ x ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ 0 ਸੀ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਿਆ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ठीक है। उसी तरह मान लो मेरे को जे आ इक्वेशन होवे x = 2 फॉर एग्जाम्पल तो असीं इहनूं किवें लिखांगे 2 वेरिएबल दे विच बन गई तो तुसी बेटा गैस कर सकते हो ਇਹਦਾ ग्राफ किहदे पैरेलल बनेगा। हुण y दा कोएफिशिएंट 0 है तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है y दे पैरेलल बनेगा। ये ध्यान रखना बेटे कि ਜਿਹੜਾ कोएफिशिएंट ਜਿਹੜਾ वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है ਉਹਦੇ पैरेलल की बन जाता है ग्राफ। ਇਹ एक याद रखने का एक मैथड है। तो y = 3 दे विच x नहीं है x कोएफिशिएंट x वेरिएबल नहीं है तो x दे पैरेलल बन गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा y नहीं है तो y ਦੇ पैरेलल बन गया। एक होर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ कि जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ बेटा ਆ ਸੀ ਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ax + by + c = 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ 3y ਸੌਰੀ x + 3y = ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ बेटा ਹਮੇਸ਼ਾ ओरिजिन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਜ ਆਫ ਰਮਨੀਕ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਹਰ ਮਦਰ by taking the age of Ramneek to be x and that of her mother to be y, which of the following represents this statement? देखो बेटा ध्यान नाल रखना है कि रमनीक दी एज नूं असीं की मन्निया है x, रमनीक दी एज नूं असीं x मन्निया है ते ओहदे मदर दी एज नूं बेटा असीं की मन्निया है y ते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्हें क्या रमनीक दी जिहड़ी एज है ओहदे मदर दी एज दा बेटा की है हाफ ठीक है बच्चे। तो हुण तुसीं 2 ਨੂੰ बेटा ਆਪਾਂ उधर लेके जावांगे इज इक्वल टू y दैट इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह के बेटा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये चलो तुसी कर सकते हो x इज इक्वल टू -5 कैन बी रिटन एज लीनियर इक्वेशन किवें लिखांगे बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ y है नहीं अपने कोल ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ x इज इक्वल टू -5 है आप इत्थे लिख दिता +0 y इज इक्वल टू -5 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ D। उसी तरह बेटा a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions which of the following equation of a line does point this line। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जिवें तुहाडे कोल 1 ते 2 दिता हो तो उन्होंने पूछा कि इन्नियां सारियां नीचे समीकरणा दित्तियां कि इहदे विचों किहदा सॉल्यूशन है। इसका करन लई बेटा तुसी की करना हुंदा जिवें पहली इक्वेशन लैके इहदे विच पुट करके देखो 1 + 2 इत्थे देखो ये तुहाडे कोल इज इक्वल टू 3 आ गया तो इहदा मतलब इहदा सॉल्यूशन है ठीक है। उसी तरह हुण ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिहदा मैनूं आई होप कि तुसीं आंसर दे सकदे हो। हुण विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान नाल देखना है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मैं तुहानूं हुणे ये गल दसी सी
कि जदों किसी समीकरण दे विच जेड़ा वेरीएबल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ x ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣੇਗਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ x is equal to a is a straight line parallel to y axis ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ x is equal to 0 is a equation of the x axis और y is equal to 0 is the equation of the x। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ y ਐਕਸਿਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਨਟੀਐਸਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 5-7 ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।